Welcome to Phoenix Trading. So here we are looking for the weekly update. So what happened in the week? So as usual, as I said, Nifty is looking range bound, totally range bound, but it is showing a lot of volatility, and the range of the volatility has been increased so much that the small retailers who are selling options and very influenced by the derivatives like option sellings, future trading, they are affecting a lot. One of my friend has also lost like a good amount of money in his last trading. So I will explain what happened actually. I warned him a lot of time that the money management and the hedging should be in a way that 400 500 points movement in the Nifty also affect a little in the trade. But as usual, the risk, if we try to manage the risk, then the profitability or the reward is also according to that only. So if the risk managed well, then the reward will be less in the option selling. And the same happened that day. I will show you the logic of the Nifty, why price action not work in the index in case of gap up and gap down. So here, so here this is the trend line, okay, and Nifty is trading with the structure of lower highs here and lower lows, okay, and Nifty approaches its support many times with the lower highs, and again it is trying to go down. So as day passes, 3 days continuously passes, the option sellers, like call option sellers, are very aggressive on those strike price, like 1700, 17,100 and 17,000 call writing was very aggressive at this point of time. And suddenly what happened, the US market traded at higher that day, and suddenly Nasdaq went from -1% to closing around -3% to closing around minus plus 1% that day. So suddenly Nifty gap ups, right, from 17,000 closing, it opened around 17,300. So this kind of 300 points movement in options, like option selling is a unlimited risk. Though you are hedging something, okay, still there is a risk of very huge losses. Correct? So the same thing happened. Nifty opened at very high, and those option sellers has lost a lot, and those who has sold the puts, okay, those are already get zero, so they won't get any premium. Only call buyers are in profit that day because of this high volatility and the good gamma shoot. करेक्ट. सो कभी भी अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारा कैपिटल कितना है उस चीज़ में, राइट. अगर हमारा कैपिटल उतना नहीं है तो वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग. कैश ट्रेडिंग इज़ अ सेफेस्ट ट्रेड टू स्टार्ट विथ, क्योंकि बहुत लोग मार्केट में भी आ रहे हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दे डायरेक्टली स्टार्टेड विद द ऑप्शन ट्रेडिंग. इट इज़ लाइक अ प्लेइंग T20. आपको हर 5-5 मिनट में आपके व्यूज़ चेंज करने पड़ते हैं ना. ऑप्शन सेलिंग, ओपन इंटरेस्ट, देन ऑप्शन चेन, इतना डिटेल में लोग बात करते हैं जो कि 5-5 मिनट में चेंज हो रहा है पोजीशंस. करेक्ट. सो ट्राई टू फॉलो द प्राइस, बिकॉज ये बहुत हेवी डिमांड्स होने, मैंने बहुत बार ये ऑलरेडी ये जोन आपको ग्रीन जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है. दिस जोन इज़ वेरी हेवी डिमांड जोन. यहाँ पे जब जब निफ्टी आ रहा है अच्छा बाउंस दे रहा है, जब तक ये रेंज में बहुत बार टाइम स्पेंड करके देन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक निफ्टी के लिए कोई रिस्क नहीं है ये जोन के लिए. करेक्ट. यहाँ पे आपको डिमांड आने ही वाली है, तो वो हिसाब से आपको ट्रेड मैनेज करना चाहिए था. बट एनीवेज ये थोड़ी सी प्राइस एक्शंस की बातें होगी. सो वी विल मूव आउट टू आवर नेक्स्ट थिंग, निफ्टी दिस वीक का जो ओवरव्यू है हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर. सो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ डेली टाइम फ्रेम. सो एज आई मेंशन लास्ट वीक की ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ करके रखा था. करेक्ट. आई हैव ड्रॉन अ सर्कल हियर कि ये सर्कल में मार्केट रहेगा, एंड वैसे ही हो रहा है. अभी तक कोई ब्रेकआउट हमें मिला नहीं है किसी भी साइड. बहुत ही रेंज बाउंड चीज़ें चल रही है.
सो अब क्या होगा, अब मार्केट जो है कौन से, मार्केट जो है वो उसके ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने एक बार टेस्ट किया है यहाँ पे, राइट। It has tested here, it has tested here, here and here also. So continuously market ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, एंड बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस थिंग्स, राइट, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है तो वो पार नहीं कर पा रहे उस रेजिस्टेंस को। सो अब क्या होगा, मार्केट अगेन इज शोइंग अराउंड समथिंग अराउंड 160 गैप डाउन। सो अभी जिस दिन उन्होंने जो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन लॉस में काटी थी, उनको दिखेगा कि वो फिर से अभी पोजीशन उसकी प्रॉफिट में आ रही है, राइट। सो आपको 500 पॉइंट्स ऊपर नीचे की रेंज में घूम रहा है निफ्टी, तो उतनी होल्डिंग की कैपेसिटी आपको अगर होगी तो ही आप पोजीशंस मैनेज कर पाओगे उस चीज़ पे। एंड अगेन अभी क्या होगा, निफ्टी नीचे खुलने वाला है, राइट। अगेन निफ्टी ट्राई टू क्लोज अराउंड हियर, दिस रेंज में खुलेगा अभी। तो यहाँ पे आके निफ्टी फिर से अभी क्या करता है पता नहीं, राइट। तो हमें कैश से ही मतलब रखना चाहिए, ना कि इंडेक्स से। इंडेक्स क्या कर रहा है, मोटा मोटी ओवरव्यू हमें रखेंगे तो ठीक है। मेन आपका फोकस होना चाहिए सेक्टर्स पे, कौन सा सेक्टर्स लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, वो सेक्टर्स में विच आर द विनर्स, विच आर द फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। वो वहाँ पे आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी चार्ट दिखा रहा है तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज कोई इंडिकेशन चार्ट पे नहीं है, देन यू शुड अवॉइड दोज काइंड ऑफ ट्रेड्स, राइट। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू कि निफ्टी ये वीक में भी साइडवेज ही रहने वाला है। जब तक मुझे कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता किसी भी साइड से, ना शॉर्ट साइड से बनता है ना लॉन्ग साइड से बनता है। तो कौन सी अभी रेंज हो गई है, सो वी विल ड्रॉ दैट रेंज ऑल्सो। ये जो रेंज है, ये रेंज का मुझे ब्रेकआउट चाहिए। अगर किसी भी साइड में ब्रेकआउट आता है देन ये रेंज का जितना एक प्राइस परसेंट है उतना मुझे ऊपर की साइड इधर मिलेगा, इधर नीचे की साइड मिलेगा। अगर नीचे की साइड मिलता है तो अपना ये जो सपोर्ट था ये टूटने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। देन ये जो 16,000 1800 का जो एक अभी का सपोर्ट है वो उसका रेजिस्टेंस काम करके निफ्टी नीचे चला जाएगा टुवर्ड्स अराउंड 15,500 जो नीचे के अपने टारगेट्स थे। अगर ये ब्रेक होता है ऊपर की साइड में तो अगेन इट विल रीटेस्ट दिस लेवल, देन आपका 17,100 से लेके 17,000 ये आपका बड़ा सपोर्ट बनेगा, एंड निफ्टी अप्रोच अगेन विल अप्रोच अगेन अराउंड 17,800 800 टू 18K। ये ऊपर के टारगेट हो गए। अब ये जब तक कोई उसमें एक डिसाइसिव गुड बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं बनता तब तक मुझे इसमें निफ्टी में एज अ स्विंग ट्रेडर जो अगर कोई रहेगा तो कोई ट्रेड बनने के चांसेस इसमें नहीं है, राइट। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक रेंज कोई एक्सपांशन नहीं होती हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है इंडेक्स स्पेसिफिक एंड कैश स्पेसिफिक्स ऑल्सो। कोई ट्रेड अभी फिलहाल मार्केट में ज़्यादा है अवेलेबल है नहीं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगेन अप्रोचिंग सॉरी ओके। सो बैंक निफ्टी अगेन अप्रोचिंग इट्स ट्रेंड लाइन। यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, ये जो एक रेजिस्टेंस बना था, जो ग्रीन जोन है दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ इट। तो यहाँ पे आके अब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस अगेन ट्राई कर रहा है ये जोन में आने का। अगर ये जोन के अंदर टिक गया तो हमें ऊपर के टारगेट्स फिर से ओपन अप हो जाएंगे, राइट। वन से ओके। सो बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, कोई बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अब हम देखेंगे कि तो एक रेंज बना चुका है वो, दिस इज अ रेंज, एक रेंज बैंक निफ्टी बनी है। जब तक इसका ऊपर निकलता नहीं है तब तक कोई ट्रेड नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलता है बिकॉज इट इज़ होल्डिंग इज 21 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो,
अगर 21 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करता है देन वी विल सी द अगेन द मूवमेंट ऑफ 40,000 एंड 41,000 के टारगेट्स निकल के आएंगे। अगर नीचे की तरफ ये फिर से चालू हो गया ट्रेड करने के लिए, यानी ये 21 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस को आ गया, देन अगेन ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है वो यहाँ पे टेस्ट करेगा, विच इज़ अ टारगेट कमिंग अराउंड 37 के। सिंपल रेंज एक्सपांशंस के ही अभी प्लेइंग है, बाकी तो कुछ अवेलेबल है नहीं मार्केट में। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता कोई ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज आपकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं बड़े बड़े लॉसेस होल्ड करने की, राइट। सो बेटर अवॉइड निफ्टी बैंक निफ्टी जो ऑप्शंस करते हैं, बेटर अवॉइड दैट, ट्राई टू लर्न द मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे मार्केट काम कर रहा है, कैसे रेंज एक्सपांशन हो रही है, थोड़ा वेट करके ट्रेड कीजिएगा उसमें, राइट। पहले पेपर ट्रेड करके सीखे कि कैसे रेंज एक्सपांड हो रही है, ऑप्शंस पे डिटेल सीखे, ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे होते हैं, कैसे डीके होता है, सारी वो चीज़ें देख के फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में आइएगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस की क्लासेस ले लो, बट आई स्ट्रिक्टली अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे पैसे बन रहे हैं तो बेटर स्टिक टू इट। रिस्क अपनी ज़्यादा है नहीं लेने की तो नहीं लेनी चाहिए। कैश में अपना होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है बिकॉज क्वांटिटी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स इन कैश, राइट। आपको एक शेयर खरीद के प्रैक्टिस करनी तो आप कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर ऑप्शंस में वैसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज अ बैंक निफ्टी। मेटल सेक्टर देखते हैं अभी। मेटल सेक्टर अगेन टेकिंग कंटिन्यूस रेजिस्टेंस टू इस मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, उसके कंटिन्यूस एक टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो जब तक 21 डे मूविंग एवरेज मेटल पे नहीं गेन हो रहा है हमें कोई ट्रेड अपर साइड में मिलने के चांसेस नहीं है। एंड इट इज हिटिंग अगेन एंड अगेन दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसके नीचे अगर आ गया मार्केट तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, ये सपोर्ट तोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे देन, ठीक है। बट एज फार एज कंसर्न कि अगेन ये जो बड़ी रेंज है, अगेन निफ्टी मेटल इज प्लेइंग इनटू दोज रेंज। ये रेंज का जो 50% है, आई विश कि ये गेन करे इसके ऊपर, राइट। बट मेरी विश से कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट प्राइस जो है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। सो जस्ट कीप वॉच ऑन मेटल कि जब तक 21 डे मूविंग एवरेज नहीं गेन हो रहा है डोंट टेक एनी ट्रेड, राइट। देन द नेक्स्ट फार्मा ने एक बार एक ब्रेकआउट का ट्राई किया था, बट मैंने बोला था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कैंडल, राइट। लास्ट वीक ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि मुझे श्योर नहीं हूँ मैं इस कैंडल के बारे में। बट अभी क्या हो रहा है, अगर अभी फिर से एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला सपोजिटली, अगर फिर से मुझे एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला देन फार्मा में डेफिनेटली एक अच्छी रन आएगी। सो कीप लुकिंग ऑन फार्मा। ओके, आईटी सेक्टर के लिए एक जो पहला हडल था 21 मूविंग डे एवरेज वो उसने गेन कर लिया है। देन वो एक रेजिस्टेंस जो लाइन है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अभी वो हॉवर कर रहा है, उसको वहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस मिल गया है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि एक मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड लाइन है, नहीं कि एक सप्लाई जोन है, ये तीनों को उसको बीट करके उसके ऊपर अगर जगह टिकता है तो आईटी के स्विंग ट्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अभी तो वेट एंड वॉच है, आईटी में कोई ट्रेड्स नहीं है। एफएमसीजी कुछ नहीं हो रहा है, मैंने जैसे ही बोला था पूरा साइडवेज मूवमेंट है। अब शायद यहाँ पे एक हमें देखने को मिलेगा, ये जो जोन है यहाँ पे अगर प्राइस आती है अगेन, ये जो डिमांड जोन है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड करके हम एक एफएमसीजी के लिए हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज एफएमसीजी में वेट एंड वॉच है क्योंकि ऑलरेडी बहुत रन दे चुका है। सो अब फिलहाल के लिए कोई ट्रेड है नहीं। Small cap taking resistance of the 21 डे मूविंग एवरेज अगेन इट इज़ होल्डिंग्स। अभी थोड़ा साइडवेज गया है लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मार्केट रिफ्लेक्ट ही कर रहा है साइडवेज मूवमेंट, तो ये सारे सेक्टर्स भी अभी वैसे ही मूवमेंट करेंगे। ऑटो में जो एक कंसोलिडेशन हो रहा था उसके नीचे अब ऑटो ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये जो एक नीचे का डिमांड जोन है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज़ मिलती है
यहाँ पे अगर मुझे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स अगर मिलते ये जोन के आसपास, थोड़े दिन के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है, ये जो रेंज अभी बनी है इसका ब्रेकडाउन अगर होता है और इसका मुझे कोई अगर चांस होता है कि यहाँ पे मैं ट्रेड करूँ, देन इट विल बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो ऑटो सेक्टर में थोड़ा ध्यान रखिएगा, शायद एक ट्रेड हमें मिल जाएंगे ऑटो पे। PSU बैंक सेम, लाइक इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस नाउ, और इस प्रीवियस जो डिमांड जोन था अब उसका रेजिस्टेंस लेके बार बार मार्केट वहाँ पे ही हॉर कर रहा है। अब तक लो टूटे नहीं है, लेकिन वी विल सी कि क्या हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में। एंड वन मोर थिंग, सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं तो और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट की, राइट। एनर्जी सेक्टर ने जो ट्रेंड लाइन एक गेन करके एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था, वहाँ पे ही अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट। तो ये जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये जो 21 डे मूविंग एवरेज है वो भी गेन हो जाएगा और मार्केट को इसके ऊपर टिकना पड़ेगा एनर्जी सेक्टर को, देन ओनली वी विल सी द दिस प्रीवियस स्विंग जो हाइस थे वो अचीव कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे आती है तो ये जो जितना एक रेंज है उतना नीचे की तरफ हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी रेंज बाउंड ही प्ले हो रहा है, सो बी अवेयर ऑफ दिस रेंज बाउंड प्ले ऑल्सो। Then next sector is ओके, दिस इज द मेन सेक्टर्स थे। अभी इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा है नहीं, तो वो अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है नहीं डेली बेसिस पे, इट इज़ अराउंड 18%। सो मार्केट में ज़्यादा फियर है नहीं क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है कि वोलेटिलिटी रहने ही वाले हैं मार्केट, सो उतना एक अच्छी बात है। जो डॉलर था, US डॉलर था, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है जिसका मार्केट में अपने रिफ्लेक्ट मिला और एक अच्छा थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की साइड मिला। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक गेम हो रहा है वो चीज़ है 21 डे मूविंग एवरेज का। अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज मार्केट सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो कंसोलिडेशन ही किया और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया उसके बाद में। अब यहाँ से जो गैप है वो बहुत बड़ी है, तो शायद डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर से ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, राइट। अगर ये टूटता है यहाँ से तो सीधा ये फिर से अपने ब्रेकआउट जोन पे आ जाएगा, तो मेरी पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि डॉलर कैन विजिट 80 रुपीज़, क्योंकि इतनी वन वे मूवमेंट के बाद थोड़ा सा एक नीचे की तरफ आना बनता है, उसका कंसोलिडेशन होता है, उसका फ़ायदा अपने मार्केट को हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, राइट। तो डॉलर इंडेक्स अभी फ़िलहाल अगर जितना कूल होता है उतने अपने मार्केट के लिए अच्छी बात है। फाइनली यूएस मार्केट जैसे में हम लोग ने ड्रॉ किया था कि मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस के बीच में अटका हुआ है, तो अभी पूरा साइडवेज जाएगा ये, देयर विल बी नो मूवमेंट, बट ओनली गुड थिंग इज इट इज़ होल्डिंग इट्स 21 डे मूविंग एवरेज फॉर अ वाइल। यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज उसने होल्ड किया ब्रेकआउट के बाद, अगर ये फिर से जोन गेन होता है देन हमें 31 और 32,000 के आसपास के जो टारगेट्स है वो मिल जाएंगे, और जिसका फ़ायदा इंडियन मार्केट को स्ट्रेट अवे होगा, राइट। ये शायद ऐसे कुछ दिन स्पेंड करके शायद फिर ऊपर चला जाए, उसके बाद में देखते फिर क्या होता है। बिकॉज ये जो 3 टारगेट्स है 31, 32, 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर मार्केट का एक डायरेक्शन हमें मिलेगा कि ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। सो ओवरऑल अगर समरी देखा जाए ये वीक की भी, तो बहुत ही चॉपी और बहुत ही साइडवेज मूवमेंट रहने वाला है। बट साइडवेज मूवमेंट का ये मतलब नहीं कि आप पुट और कॉल दोनों सेल कर दो कोई स्ट्राइक प्राइस रैंडम लेके, नो, ऐसे नहीं होगा। साइडवेज मूवमेंट में भी बहुत सारे गैप अप गैप डाउन होंगे और वो रेंज के अंदर बहुत एक्सट्रीम हो सकता है, तो आपको वो रेंज की रिस्क लेके चलना पड़ेगा। और अगर वो रेंज का एक्सपेंशन भी आ गया है तो आपको उसमें भी लॉसेस होने की चांसेस है, बिकॉज बहुत वन वे मूवमेंट एक साइड चला जाएगा निफ्टी या कोई भी मार्केट जो सेक्टर है। सो कीप वॉच ऑन दिस। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक ये वीक में कुछ है नहीं ज़्यादा स्विंग, जो पेड के लिए वो मैं अभी दे दूंगा, बट फॉर अ वाइल अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सो स्टे ट्यून, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।